براہ راست لیے چلیں گے فلیٹیز ہوٹل، جہاں پر مریم نواز اور حمزہ شہباز نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں پنجاب کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ پنجاب کا وہ مینڈیٹ جو 2018 میں اس ووٹ چور عمران خان نے کلیئر مینڈیٹ دیا پنجاب کے عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون کو، شیر کو، نواز شریف کو، لیکن اس نے وہ مینڈیٹ پہ شب خون مارا اور مسلم لیگ نون کی اور پنجاب کے عوام کی مرضی کی حکومت نہیں بننے دی۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا میرے بھائیوں؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پنجاب کے عوام کو بزدار جیسا وزیر اعلیٰ، جس کو صرف نام کا وزیر اعلیٰ ملا، جس کو چلاتی فرحت تھی، جس کے تانے بانے تمام بنی گالا سے ملتے ہیں، جس کے ثبوت آنے والے دنوں میں شواہد ایسے سامنے آئیں گے کہ لوگ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب پنجاب کے عوام کا 2018 میں مینڈیٹ چرایا گیا، مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کے باوجود پنجاب کے عوام کو نمائندگی سے محروم رکھا گیا، تو آج میں پنجاب کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ کے مینڈیٹ چرانے کا بدلہ آج نواز شریف نے لے لیا۔ آج میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام جماعتوں کی، ان تمام گروپس کی، جن میں علیم خان گروپ، جن کے اندر جہانگیر ترین صاحب کا گروپ، اور جتنے بھی دوسری جماعتوں کے اراکین نے اس اسد کھوکھر گروپ، اور اگر کسی کا نام میں نہ لے تو میں سب کے نام لے کر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں سب کا تہہ دل سے یہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے عوام کی کال پہ لبیک کہا اور پنجاب کے عوام کی آپ نے جان اس نالائق، نااہل، ظالم اور غاصب حکومت سے چھڑائی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پنجاب کے عوام کے مینڈیٹ پہ، پنجاب کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا تو اس کے نتیجے میں پنجاب کے عوام کو کیا ملا؟ پنجاب کے عوام کو یاد ہے پچھلے رمضان میں 2 کلو چینی کے لیے بیکاری بنا دیا گیا تھا۔ یہ ووٹ چور نہ صرف ووٹ چور تھے، انہوں نے پنجاب کا آٹا چوری کیا، انہوں نے پنجاب کی چینی چوری کی، انہوں نے پنجاب کی گیس چوری کی، انہوں نے پنجاب کی بجلی چوری کی، انہوں نے پنجاب کی ترقی چوری کی۔ اور آج پورے پنجاب میں ایک سڑک نہیں بنی، کہیں کوئی ترقیاتی منصوبہ نہیں لگا، کہیں ترقی ہوئی ہے تو فرح گجر کے گاؤں میں ہوئی ہے، سڑکیں بنی ہیں تو فرح گجر کے گاؤں میں بنی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جو عورت جس کا نہ کوئی عہدہ ہے حکومت کے اندر، جس کا نہ کوئی لینا دینا ہے حکومت سے، وہ پنجاب میں بیٹھ کر تقرریاں، پوسٹنگ، ٹرانسفرز کیسے کر رہی تھی؟ ظاہر ہے وہ کسی کی فرنٹ پرسن تھی نا۔ کس کی فرنٹ پرسن تھی؟ سارا پاکستان جانتا ہے کہ وہ کس کی فرنٹ پرسن تھی، کس کو کمیشن دیتی تھی ہر پوسٹنگ میں سے، ہر ٹرانسفر میں سے، اور جب حساب کتاب کا وقت آیا تو اس کو برقع پہنا کے آرام سے راتوں رات ایئرپورٹ سے پاکستان سے باہر بھیج دیا۔ اور آج میرا سر شرم سے جھک گیا جس طرح پنجاب اسمبلی کو آج تالا لگایا گیا، جس طرح پنجاب اسمبلی کے ارد گرد آج خاردار تاریں لگائی گئی، جس طرح میڈیا کے میرے تمام بھائیوں کا، بہنوں کا جو انٹری ہے وہ وہاں پر بین کی گئی۔ مجبوراً ارکان اسمبلی کو یہ اجلاس اس ہوٹل میں کرنا پڑا، کیونکہ آج صبح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ اگر کسی باغ میں بھی ہو جائے، یہی کہا تھا نا انہوں نے جی، لارنس گارڈن میں یا باری جناح میں بھی ہو جائے تو اجلاس ہوتا ہے، اجلاس ہوتا ہے۔ پاکستان کے پنجاب کے عوام کے نمائندوں کے وہاں کے دن کو 200 نمائندے یہاں پر موجود ہیں، اور کون بھاگتا ہے، کون تانے لگاتا ہے اسمبلی کو؟
کون خاردار تارے بچھواتا ہے؟ کون میڈیا کو دور رکھتا ہے؟ کون اسمبلی چھوڑ کے نہیں وکٹ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے؟ وہ بھاگ جاتا ہے جس کے پاس اس کے بندے پورے نہیں ہیں۔ ہم نے ڈکٹیٹرز کے دور میں دیکھا تھا، پاکستان نے 4 ڈکٹیٹرز برداشت کیے ہیں۔ ہم نے ڈکٹیٹرز کے دور میں دیکھا تھا کہ ڈکٹیٹرز اسمبلیز کے اندر، عوامی نمائندوں کی اسمبلیوں کے اندر، ایوان نمائندگان میں، آفیسز میں اپنے نمائندے بٹھاتے تھے جو وہاں بیٹھ کر اسمبلی کے اجلاس اور اسمبلی کی کارروائی چلایا کرتے تھے۔ آج بڑے افسوس سے سر جھکا کے کہنا پڑتا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اپنا آفس آج اسی آمرانہ کارروائی کے لیے پیش کر دی۔ مجھے یقین مانی، مجھے آج بہت افسوس ہوا کہ چودھری ظہور الہی شہید صاحب کی بھی کوئی لیگیسی تھی، ان کی بھی کوئی سیاسی روایات تھی، ان کی بھی کوئی خاندانی روایات تھی۔ تو میں پرویز الہی سے، جو میرے بزرگ ہیں، میں دل سے ان کا سینیورٹی کی وجہ سے احترام کرتی ہوں، میں ان سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک سیاسی جماعت ہیں اور سوجھ بوجھ رکھنے والی سیاسی جماعت ہیں، آپ نے کیوں اس آئین شکن عمران خان کا ساتھ دیا؟ آپ نے کیوں ایک ہاری ہوئی بازی کھیلی؟ میرا دل اور دماغ اس بات کو مانتا نہیں ہے کہ اس قسم کے سیاسی شعور رکھنے والے خاندان کا کوئی فرد اتنی بری ہاری ہوئی بازی کھیلے گا۔ یہ بازی آپ ہار چکے ہیں، چاہے آپ اسمبلی کو تالا لگائیں، چاہے آپ اپنے نمائندوں کو روکیں، چاہے میڈیا کو روکیں، چاہے خاردار تارے لگائیں، چاہے آئین توڑیں، یا آپ بکٹیں اٹھا کر بھاگ جائیں، یا میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، یا آپ کچھ بھی کریں، یا آپ گنڈا گردی کر دیں، یا دہشت گردی کریں۔ میں عمران خان اور اس کے سارے ساتھیوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ یہ گیم تم بری طرح ہار چکے ہو۔ اور بڑے فخر سے یہ بات کرتا ہے تو پاکستان کا پہلا سویلین ڈکٹیٹر ہونے کا اعزاز آج عمران خان نے حاصل کیا۔ یہ پہلا سویلین حکمران ہے، شرم سے سر جھک گئے پاکستانی عوام کے، یہ پہلا سویلین حکمران ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ شخص جس کا نام عمران خان ہے، جو پاکستان کا آئین توڑنے کا داغ اپنے ماتھے پر سجا چکا ہے، اس کو اقتدار میں آنا بھی ذلت کے راستے سے نصیب ہوا، اقتدار سے جانا اس کو اس سے بھی زیادہ ذلت کے راستے سے نصیب ہوا۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں پنجاب کے عوام کو کہ پنجاب کے عوام اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں۔ ہم سب پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان کے نمائندے ہیں، میں پاکستان کی بیٹی ہوں، لیکن میری پیدائش پنجاب کی دھرتی پر ہوئی ہے، اور میں پنجاب کے عوام کے لیے ہم نے آج سٹینڈ لیا ہے، ان کو ان کے اصل نمائندے تک پہنچایا ہے، جس کا نام ہے حمزہ شہباز شریف۔ اور میں پنجاب کے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اٹھو اور اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھوں میں لو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں چینی 55 روپے کلو سے اب 120 روپے کلو پر ملتی رہے اور بھکاریوں کی طرح ملتی رہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ 60 روپے جو پیٹرول ہے وہ 160 روپے ہو جائے اور تم پیٹرول کی لائنوں میں لگے رہو؟ صبح میں ٹویٹر پہ پڑھ رہی تھی، لوگوں نے دہائی مچائی ہوئی تھی، جو لوگوں کو میں نہیں جانتی، کہ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت گیس نہیں ہوتی۔ نواز شریف نے، شہباز شریف نے بجلی کے کارخانے لگا دیے۔ ہمارے پاس تو بلی گالا کی طرح کوئی جنات نہیں تھے نا، ہمارے پاس تو کوئی موکلات نہیں تھے نا، لیکن شہباز شریف اور نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی تمام ٹیم نے دن رات ایک کر کے جنات کی طرح کام کیا، اور 5 سے 7 ہزار میگا واٹ کا جو ڈفرنس تھا اس کو پورا کیا۔ 20-22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے پاکستان کے عوام کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نجات دے دی۔ آج نہ صرف وہ نااہلی واپس آ گئی، مہنگائی واپس آ گئی، بجلی کی قلت واپس آ گئی، گیس کی قلت واپس آ گئی، کرپشن واپس آ گئی، رشوت واپس آ گئی،
ये देखो मेरे भाइयों कि इस नालायकी ने, इस नाअहली ने जितना पंजाब को अफेक्ट किया है वो उसने किसी सूबे को शायद नहीं किया। मेरे अगर सर KPK जो है उसकी असेंबली को कोई गजल पहुंचाने की जब कोशिश कोई करेगा, बलोचिस्तान की असेंबली को या उनके नुमाइंदों को कोई गलत तरीके से हटाने की कोशिश करेगा, सिंध के अवामी मैंडेट पे अगर कोई कुछ करेगा, AJK के अवामी मैंडेट पे जैसे इन्होंने डाका डाला कोई डालेगा, गिलगित बल्तिस्तान के मैंडेट को चुराने की कोशिश करेगा, तो मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला उनके लिए ऐसे ही खड़ी होगी। और उसके बाद अपनी नालायकी को, अपनी नाअहली को, अपनी गद्दारी को, अपनी आइन शिकनी को कहता है मेरे खिलाफ साजिश हुई, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और कहता है मेरे खिलाफ साजिश हुई, भाई बड़ी अच्छी गैर मुल्की साजिश थी जिसने अपने ही वजीर आला को हटा दिया, बुजदार को हटा दिया। बड़ी अच्छी गैर मुल्की साजिश थी कि अपनी ही कौमी असेंबली तोड़ दी। बड़ी अच्छी कोई गैर मुल्की साजिश थी कि पाकिस्तान के आइन को तुमने तोड़ दिया। बड़ी अच्छी कोई साजिश थी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रहने दी, वो इंटरनेशनल साजिश ने नहीं तोड़ी। इंटरनेशनल साजिश भी हुकूमतें देख देख के तोड़ती है। जहां अपनी हुकूमत है वो बचा ली, बाकी का जो जिम्मेदारी है या बाकी का जो मलबा है वो सारा इंटरनेशनल साजिश में डाल दिया। अपने ही गवर्नर पंजाब को फारिग किया, क्या वो इंटरनेशनल साजिश थी? डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, खुद लेकर आए अपने स्पीकर के खिलाफ, क्या वो इंटरनेशनल साजिश थी? अगर ये इंटरनेशनल साजिश थी तो ये तमाम काम इमरान खान खुद अपने हाथों अंजाम दे चुका है। तो इंटरनेशनल साजिश का असर मोहरा कौन हुआ? बिल्कुल इमरान खान ने इंटरनेशनल साजिश के नाम पे ये सब काम खुद किए और इल्जाम अपोजिशन को दे रहे हैं। वाह! तो मैं आज पंजाब के अवाम को एक दफा फिर ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप तरक्की चाहते हो, अगर आप मोटरवेज चाहते हो, अगर आप महंगाई से निजात चाहते हो, अगर आप अपने हकूक की बहाली चाहते हो, अगर आप जो ऑरेंज लाइन है वो चाहते हो, अगर मेट्रो बस सर्विस चाहते हो, अगर आप नए हॉस्पिटल्स चाहते हो, अगर आप नए स्कूल्स चाहते हो, अगर आप हेल्थ में और एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हो, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दो। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इलेक्शन जब भी हो, इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत आए ताकि पाकिस्तान इन घिरे हुए बहरानों से बाहर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मैं एक और बात करना चाहती हूँ, सॉरी मैं भूल गई। यहाँ मुस्लिम लीग नून के जितने भी MPAs बैठे हैं, मैं सबको दोनों हाथों से सलूट करना चाहती हूँ। उसकी वजह यह है कि पूरा सिस्टम नवाज शरीफ के खिलाफ था। पाकिस्तान का मैं कहती हूँ कि जो भी सब कुछ नवाज शरीफ के खिलाफ था और जबरदस्त आमरीत का वक्त था, जुल्म का वक्त था, जबर का वक्त था। लेकिन मेरे इन बहनों और भाइयों ने जो पंजाब असेंबली के मुस्लिम लीग नून के MPAs हैं, इन्होंने वो सब जबर बर्दाश्त किया, वो जुल्म बर्दाश्त किया, वो इंतकाम बर्दाश्त किया। लेकिन सलाम है आप सबको कि आपने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया आप सब। मैं अपने कारकुनों से दरख्वास्त करूँगा, आपकी मोहब्बत की बहुत कदर है। चंद आज अहम बातें करनी चाहता हूँ, इसलिए ज़रा खामोशी से। अब नारे बिल्कुल नहीं लगेंगे, नारे हम बाद में लगाएंगे।
मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ अपनी जमात का, अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, अपने साथी जहांगीर तरीन खान साहब के ग्रुप के मेरे मोअज़्ज़िज़ अरकान, अलीम खान साहब के ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ, असद खोकर साहब, मेरे दोस्त और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा साहब और बिलखसूस पंजाब की आवाम का आज मैं बहुत आजी के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप डिप्टी स्पीकर्स की रूलिंग दे सकते हैं, आप पंजाब असेंबली को सील कर सकते हैं, आप वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर सकते हैं, आप पंजाब असेंबली के मुलाजमीन को असेंबली के अंदर कैद कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के ज़मीर को नहीं कैद कर सकते। और आज खुदा के फजल व करम से जो एक अदली अक्सरियत की रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा आज यहाँ पर मोअज़्ज़िज़ अरकान ने इस कारकुन पर एतमाद का इजहार किया। ये अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह की मेहरबानी। मैं पंजाब की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि आज 4 दिन हो गए ये खेल तमाशा जो वफाक से शुरू हुआ और आज वही खिलवाड़ जो वफाक में आइन के साथ हुआ, कानून के साथ हुआ, आज उसी का तसलसल जो है वो पंजाब में आ चुका है। 4 दिन से पंजाब के सूबे का कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। 4 साल से कोई वाली वारिस था नहीं। करप्शन का बाजार गर्म था। इमरान का वसीम अकरम प्लस जो है दोनों हाथों से करप्शन को, पैसे को समेट रहा था। तो क्या इस 12 करोड़ सूबे से कितना इंतकाम लेना है इमरान नियाज़ी? कभी इजलास की तारीख दी जाती है, परवेज़ इलाही साहब आते हैं और जब पता लगता है कि अदली अक्सर पूरी नहीं 6 मिनट के अंदर इजलास बर्खास्त कर दिया जाता है। वो आईनी कानूनी तकाजे होते हैं। वो इजलास सरीहन लीडर ऑफ द हाउस के इंतखाब के लिए बुलाया गया था। फिर रात के नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज हमजा शहबाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पंजाब में नए कायदे ऐवान का इंतखाब मुअम्मा बन गया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब से बुलाया गया इजलास खिलाफ ज़ाब्ता करार। दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। स्पीकर के इख्तियारात वापस ले लिए गए। डिप्टी स्पीकर को असम्बली के अंदर जाने से रोक दिया गया। दोस्त मोहम्मद मज़ारी का कहना है वो कहीं भी इजलास बुलाने का इख्तियार रखते हैं। वफाक के बाद पंजाब में भी आईनी बहरान संगीन हो गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब से 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी शब ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें पंजाब असम्बली का इजलास 6 अप्रैल की शाम 7:30 बजे तलब किया गया। सूरत हाल का इल्म होने पर हुकूमत की जानिब से फौरी जवाबी एक्शन लिया गया। तर्जुमान पंजाब असम्बली के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का ऑर्डर असम्बली कवायद और ज़वाबित के खिलाफ है। दोस्त मोहम्मद मज़ारी से कायदा 25 के तहत इख्तियारात वापस ले लिए गए। सिर्फ यही नहीं, PTI और काफ लीग के अरकान की जानिब से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई, जिसमें कहा गया कि वो ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो बैठे हैं और इजलास की सदारत का हक नहीं रखते। दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर अपने मुकर्रर वक्त पर पंजाब असम्बली पहुंच गए, ताहम उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने कहा कि वो कहीं भी इजलास बुला सकते हैं। बुखलाहट का शिकार अफराद हौसला हार बैठे हैं। ये अंदर स्पीकर और स्पीकर का स्टाफ डर रहे हैं मेरे से। जो मैंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए, आइन के मुताबिक इस्तेमाल किए। पाकिस्तान का इस वक्त बहुत बड़ा सूबा जिसकी आबादी 12-13 करोड़ है, इस टाइम उसमें कोई चीफ मिनिस्टर नहीं। मैं ये समझता हूँ कि बुखलाहट का शिकार। पंजाब असम्बली का इजलास पहले 6 अप्रैल को बुलाकर 16 अप्रैल तक मौखर किया गया। डिप्टी स्पीकर की जानिब से दोबारा 6 अप्रैल को इजलास बुलाया गया, लेकिन वो भी कानूनी पेचीदगियों की नजर हो गया। हुकूमत की जानिब से तसादुम का रवैया है। हुकूमत को सब कानून के मुताबिक करना चाहिए था। माहिर कानून हफीजुर रहमान चौधरी का कहना है कि एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में इजलास में वोटिंग का कहा।
स्पीकर खुद नामजद हैं और पावर डिप्टी स्पीकर के पास है। जी, मैं समझता हूँ ये हुकूमत की तरफ से एक खुला जो है ना इस वक्त तसादम का रवैया है, ये नहीं होना चाहिए। इसको जो कानून के मुताबिक अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारी प्रोसीडिंग चलनी चाहिए थी। कल एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दी थी कि जी हम वोटिंग करवा देंगे, आज का उन्होंने वादा किया हुआ है वहाँ पे। जिस वजह से उन्होंने डिप्टी स्पीकर को इन्फॉर्म किया कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और डिप्टी स्पीकर ने वो जो डेट है वोटिंग के लिए जो शायद पहले मुलतवी कर दी थी उसको दोबारा रिव्यू किया और आज के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया। उसके पास इख्तियारात थे, डिप्टी स्पीकर के पास इख्तियारात थे। फेयर प्ले का तकाजा ये है कि वफाक और पंजाब में अदम एतमाद होने देते। आपके पास अक्सरियत है तो साबित करें, वरना अपोजिशन में बैठें। अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। जो फेयर प्ले है उसका तकाजा ये था कि इलेक्शन होने देते, अदम एतमाद सेंटर में भी होने देते और पंजाब असम्बली में भी इलेक्शन होने देते। ये आइन की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं ये कोई मुनासिब नहीं है, जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। और मेरी तमाम ज़ी-शऊर जितने भी लोग हैं उन सब से ये गुजारिश है, इस तरह आइन को पामाल ना करें, इस तरह जमहूरियत का मजाक ना उड़ाएं, इलेक्शन हो लेने दें। इलेक्शन ही वाहिद तरीका है जिसमें जो अक्सरियत रखता है वही वज़ीर आला मुंतखब होता है। अगर आपके पास अक्सरियत है तो आप साबित करें, और अगर आपके पास अक्सरियत नहीं है तो आप अपोजिशन में। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर नून लीग की जवाबी कार्रवाई। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तैयार कर ली, ताहम असम्बली सेक्रेटेरिएट तहरीक जमा न होने पर लीगी रहनुमा वापस चले गए। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो नून लीग ने भी जवाबी हिकमत अमली अपना ली। लीगी अरकान स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराने पंजाब असम्बली पहुँच गए। समीउल्लाह खान, सलमान रफीक, खलील ताहिर सिंधु, पीर अशरफ और मिर्जा जावेद तहरीक अदम एतमाद जमा कराने पहुँचे, लेकिन बात ना बनी। लीगी अरकान की स्पेशल सेक्रेटरी असम्बली आमिर हबीब से नोक झोंक हुई। आमिर हबीब ने इसरार किया कि वो उन्हें तहरीक अदम एतमाद दे दें, ताहम लीगी अरकान ने आमिर हबीब की ऑफर ठुकरा दी और वापस चले गए। सऊदी हुक्काम ने पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। 40 साल से कम उम्र ज़ायरीन फैमिली के बगैर उमरा की सादत हासिल कर सकेंगे। 45 साल से कम उम्र ख़वातीन के लिए महरम की शर्त ख़त्म कर दी गई। सऊदी सफारत खाने ने तमाम उम्र ऑपरेटर, एजेंसीज और एयरलाइंस को सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 40 साल से कम उम्र ज़ायरीन फैमिली के बगैर भी उम्रे की खर्च से सऊदी अरब जा सकेंगे। 45 साल से कम उम्र खवातीन के लिए महरम की शर्त खत्म कर दी गई है। महरम के बगैर खवातीन को ग्रुप की शर्त से भी मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। ये फैसले कोरोना वबा के दौरान आयद बंदिशें खत्म करने के बाद किए गए हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के सबब बिजली की तलब में इजाफा होने लगा। लेस्को की डिमांड 4000 मेगावाट से तजावुज कर गई। रमजानुल मुबारक में दिन और रात के औकात में बिजली की तलब में इजाफा हुआ है। ज़राए ने बताया कि इस वक्त कंपनी की डिमांड 4100 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फराहमी 4000 मेगावाट है। इस तरह कंपनी को 100 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। लेस्को ने सारिफीन को सहरी और इफ्तारी के औकात कार में बिला तातुल बिजली फराहम करने के अहकामात दे रखे हैं, जिस पर अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। महकमा स्कूल एजुकेशन में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का फैसला। अफसरान की तब्दीली के लिए सर्च कमेटी तश्कील दे दी गई। ओहदों पर सीनियर असातिज़ा को तैनात किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़ का फैसला कर लिया है। पहले मरहले में 36 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के सरबराहान को तब्दील किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को तब्दील किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अफसरान की तब्दीली सर्च कमेटी से करने का फैसला किया है। सीनियर असातिज़ा को ओहदों पर तैनात किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुनासिब उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी। अफसरान की तब्दीली के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें भी तलब की जाएंगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को आखिरकार होश आ ही गया। मैट्रिक के तलबा का पूरा साल गुजर गया, प्रैक्टिकल कॉपियां तकसीम ना की जा सकीं। इम्तिहान शुरू होने से 3 हफ्ते कबल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने वेयर हाउस में मौजूद प्रैक्टिकल की 2 लाख कॉपियां तकसीम करने का हुक्म दे दिया। मैट्रिक का इम्तिहान शुरू होने में सिर्फ
3 हफ्ते बाकी रह गए हैं। इम्तिहानात से कबल तलबा ने स्कूल आना भी छोड़ दिया है। मैट्रिक के बच्चों को 2 लाख प्रैक्टिकल कॉपी कैसे तकसीम की जाए? असातिज़ा परेशानी से दो चार हो गए। असातिज़ा का कहना है कि प्रैक्टिकल कॉपियां न मिलने से बच्चे अमली इम्तिहान की बर वक्त तैयारी नहीं कर सके। तलबा का कहना था कि कॉपियां तकसीम करना थी तो तालीमी साल के आगाज पर की जाती, इम्तिहान सर पर है। 3 हफ्तों में प्रैक्टिकल की कॉपियां कैसे तैयार करेंगे? पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना था कि वेयर हाउस में प्रैक्टिकल की कॉपियां पुराने सिलेबस के मुताबिक हैं। बच्चों को कॉपियां तकसीम करना थी तो नए सिलेबस के मुताबिक फराहम की जाए। सरकारी हस्पतालों में नर्सिस को ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर ब्लैकमेल करने का मामला महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नोटिस लेकर तहकीकाती इदारों से रुजू कर लिया। नर्सिस को नामालूम ज़राए से कॉल मौसूल होने पर फौरी शिकायत के इंदराज की हिदायत की गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अफसरान के नाम पर नर्सिस को ब्लैकमेल करने का मामला संगीन हो गया। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर फोन कॉल्स के जरिए नर्सिस से रिश्वत और तहाइफ वसूल करने का भी इंकिशाफ हुआ है। इस संगीन सूरत हाल का आखिरकार नोटिस लेते हुए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने वफाकी और सूबाई तहकीकाती इदारों से रुजू कर लिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से तमाम अस्पतालों और नर्सिंग इंस्टीट्यूट के सरबराहान के नाम मुरासला अरसाल किया गया है, जिसमें नर्सिस को किसी भी नंबर से ब्लैकमेल करने के लिए कॉल मौसूल होने पर फौरी इत्तला देने की हिदायत की गई है। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर पंजाब के सरकारी कॉलेजेस असातिज़ा के धरने को 31 रोज़ हो गए। मौसम की शिद्दत और सहर अफ्तार के वक्त दरपेश मसाइल के बायस असातिज़ा बीमार पड़ने लगे। पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन के लिए पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा 31 रोज से धरना दिए हुए हैं। धरने पर बैठे असातिज़ा का कहना है कि सहर अफ्तार में दरपेश मसाइल और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस असातिज़ा कराम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। असातिज़ा ने इंतजामी हठधर्मी का शिकवा करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब चाहें तो हमारा मसला हल हो सकता है, लेकिन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमारे अज़्म पुख्ता हैं और किसी भी सूरत मुतालबा मंजूर करवाए बगैर यहाँ से नहीं उठेंगे। अभी तक नो टू चीफ सेक्रेटरी नहीं बना, अभी तक उस पर मीटिंग नहीं हुई। ज़बानी कलामी सारे कहते हैं देना है देना है देना है, दे देंगे, लेकिन जो उसके अमली इक़दामात हैं वो ज़ीरो हैं। शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का हवाला इस रिपोर्ट में देखिए। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान और सीसीपीओ फयाज अहमद देव से तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया गया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी की अदालत में साइमा यूनुस, दानियाल तारिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट पर नायब कासिद और सैनिटरी वर्कर्स भर्ती हुए। रेगुलर होने के लिए पुलिस अफसरान और उसके बाद हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालती हुक्म के बावजूद दरखास्त गुजारों को मुस्तकिल नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने सजाए मौत के कैदी को 10 साल बाद बरी कर दिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने मुजरिम नसीर अहमद की बरियत अपील मंजूर कर ली। अदालत ने जाए वक़ुआ पर चश्मदीद गवाहों की मौजूदगी साबित न होने पर शक का फायदा दिया। नसीर अहमद को 12 साल बच्चे के कत्ल का जुर्म साबित होने पर सेशन कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी। एहतसाब अदालत में चनार बाग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने फरीकैन को सेटलमेंट और मुतासरीन को रुकूम की अदायगी के लिए 14 अप्रैल तक मोहलत दे दी। नैब ने लीगी रहनुमा बर्जीस ताहिर के वारंट गिरफ्तारी से कबल आगाह करने का हुक्म हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने बर्जीस ताहिर को नोटिस जारी करते हुए 18 मई को जवाब तलब कर लिया। नैब के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करना जरूरी नहीं है। ट्रैकर के बावजूद गाड़ी चोरी होने का मामला, शहरी ने ट्रैकर कंपनी स्पाई ट्रैकर के खिलाफ 37,50,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। कैंट के रिहायशी राशिद महमूद ने मौक़िफ़ अपनाया कि उसने गाड़ी पर ट्रैकर लगाया था, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी चोरी हो गई और ट्रेस नहीं हुई। अदालत ने कंपनी के मालिक को 30 अप्रैल को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। रमज़ानुल मुबारक में शहरियों का ज़ौक़ इबादत बढ़ जाता है। बाज़ारों में टोपी, तस्बीह, जाय नमाज और मसवाक की ख़रीदारी में इजाफा हो जाता है। शहरी अपने प्यारों के इसाले सवाब के लिए ये अशिया अतिया भी करते हैं। रमज़ानुल मुबारक में इबादत से जुड़ी अशिया की अहमियत बढ़ जाती है। तस्बीह, टोपी, जाय नमाज, मसवाक की फ़रोख्त में इजाफा हो जाता है। मुख्तलिफ डिज़ाइन की टोपियाँ और जाज़िबे नज़र जाय नमाज लोगों की तवज्जो खींच लेती हैं। शहरी ज़ौक़ व शौक़ से इनकी खरीदारी करते हैं। रमज़ान का महीना है, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। ये लोग की नमाज पढ़ते हैं, टोपी और तस्बीह ये सस्ती होनी चाहिए, जाय नमाज सस्ती होनी चाहिए ताकि लोग इबादत कर सकें, खर्चा भी कम हो। रमज़ान में इंसान ये पहने तो एक तो सवाब है, ठीक है, दूसरा ज़रा धूप काफ़ी है, सर को ठंडक रहती है, दिल को भी सुकून रहता है। बढ़ती महंगाई के बायस इन अशिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। दरामदी टोपी, तस्बीह और जायनमाज की कीमत 15% तक बढ़ गई है। पिछले रमज़ान की निस्बत इस वक्त महंगाई की वजह से ना कारोबार बहुत कम है, तकरीबन 20 से 25% इजाफा हुआ है। खरीदने में भी और बेचने में भी परेशानी दुश्वारी है।
شہری اپنے پیاروں کے سال و ثواب کے لیے مساجد میں ٹوپیاں، تسبیح اور جائے نماز عطیہ کرتے ہیں تاکہ نمازیوں کو سہولت مل سکے۔ الیکشن کمیشن کا محکمہ بلدیات کو خط۔ الیکشن کمیشن نے محکمہ بلدیات سے نقشے اور انتظامی یونٹ کی تفصیلات مانگ لیں۔ الیکشن کمیشن نے محکمہ بلدیات کو خط ارسال کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے محکمہ بلدیات کو خط ارسال کیا ہے کہ جس میں محکمہ بلدیات سے نقشہ اور انتظامی یونٹ کی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے محکمہ بلدیات سے انتظامی یونٹ کی حد بندیوں کی تفصیلات بھی مانگی ہیں۔ خط میں پٹوار سرکل تک کی بھی تمام تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ تفصیلات بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے لیے مانگی ہیں۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی الیکشن کروانے کا حکم دے رکھا ہے۔ سیکٹری بلدیات ڈاکٹر نعیم رؤف کی زیر صدارت سمارٹ سٹی کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ سمارٹ سٹی منصوبے کی مانیٹرنگ کے لیے ایم سی ایل میں سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل سیکٹری ڈیولپمنٹ، ڈپٹی سیکٹری ڈیولپمنٹ، سیکشن آفیسر بلدیات اور پی آئی ٹی بی کے نمائندگان نے شرکت کی۔ پی آئی ٹی بی نمائندگان نے اجلاس کے شرکاء کو سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے خد و خال سے آگاہ کیا۔ سیکٹری بلدیات نے کہا کہ سمارٹ سٹی منصوبے کا فیز 1 آئندہ 3 سال میں مکمل ہوگا۔ ناروے کے 4 رکنی بین المذاہب وفد کی ایوا فریڈ نیبریک کی قیادت میں جامعہ مسجد کبریٰ نیو سمن آباد آمد ہوئی۔ چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا محمد عاصم مخدوم نے وفد کا استقبال کیا۔ بین المذاہب رواداری کے فروغ کے حوالے سے اہم بیٹھک ہوئی۔ وفد میں ناروے کی بین المذاہب مکالمہ کی مرکزی رہنما ماریا گلینا شریک تھیں، جبکہ چیئرمین ہیومن فرینڈز آرگنائزیشن ساجد کرسٹوفر، پادری ایمانوئل کھوکھر، مرزا اسد اللہ سعید، پیر سید ولی اللہ شاہ، سید حسنین شاہ، سید محمود غزنوی، آغا صغیر عباس ورک، علامہ محمد حسین گولڈوی، محمد احسن گیلانی، مفتی شہباز عالم فاروقی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سنڈیکیٹ کا 68واں اجلاس، 13 نئے فیکلٹی ممبرز کے تقرر، 7 طبی اداروں کے الحاق کی منظوری دی گئی۔ یو ایچ ایس سنڈیکیٹ کا 68واں اجلاس وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم کی سربراہی میں ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ کی مدت پوری ہونے پر 3 نئے ممبرز کی نامزدگی کی منظوری دی گئی، جن میں پروفیسر شہزاد حسین، پروفیسر سمیر انور اور پروفیسر سمینہ اصغر شامل ہیں۔ زمین.com کے زیر اہتمام الحیات ریزیڈنٹس ویلنسیا میں سیلز ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں سی ای او الحیات ریزیڈنشیا گلریز شبیر، مینیجنگ پارٹنر محمد باجوہ، زمین.com کے سینئر ڈائریکٹر سیلز لائق احمد چودھری سمیت دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر لائق چودھری نے کہا زمین.com نے پروجیکٹ سائٹ پر سیلز ایونٹ کے انعقاد سے اپنی منفرد پہچان بنائی۔ اس اقدام سے پراپرٹی ڈیولپرز کو بھی فائدہ ہوتا ہے، پراپرٹی مارکیٹ بھی اس سرگرمی سے مستفید ہوتی ہے۔ گلریز شبیر نے کہا زمین.com ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کرتی ہے، جس سے پروجیکٹ کم وقت میں فروخت ہو جاتے ہیں۔ ڈیولپر کے پاس یہ بھی موقع ہوتا ہے کہ وہ نئے پروجیکٹ پر جلد کام کر سکے۔ الحیات ریزیڈنشیا میں محفوظ سرمایہ کاری کے اچھے مواقع موجود ہیں، جن پر شرح نفع بھی اچھی ہے۔ سیلز ایونٹ کے موقع پر زمین.com کی ٹیم صارفین کی رہنمائی کے لیے موجود تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔